they do not have space between them. They do not have space between them. मीन्स अभी हमने देखा जो डायग्राम था कि उनके पार्टिकल जो है उनके नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है. Then the particles do not move. Particles do not move. स्पेस नहीं है तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते. Then they have rigidity. Rigidity means rigidity क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी स्टेट है या कोई भी मैटर है उसमें कितनी कैपेसिटी है अपनी साइज और शेप को मेंटेन रखने की. दैट इज नोन एज रिजिडिटी. हमें पता है कि जो सॉलिड है बिना टेंपरेचर इंक्रीज की उसकी साइज और शेप चेंज नहीं होती है. एंड लास्ट इज दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Of heat and electricity. Okay, now next we have liquid. Next we have liquid here. In liquid, first we will see that particles will be loosely packed. Particles will be loosely packed. Then second, they have space between them. They have little space between them. Then third, particles can move. The particles can move. Okay. Then next is they do not have rigidity. फिर से rigidity means उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने शेप या साइज को मेंटेन करके रख सके. Okay. Then last, these are good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Okay, now next we have gas. In gas, particles are very loosely packed. Particles are very loosely packed. Then they have a large space in between them. In between them. Then next, the particles can move easily. Then they do not have rigidity. Again, rigidity can because they cannot maintain their shape and size. And then last, these are the good conductors of heat and electricity. Okay, now so these are the characteristics of states of matter, that is solid, liquid and gas, and these are the differences in between all the three. This is completed here. Now we will see next, that is can matter change its state or not. क्या मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं. Can matter change its state or not? Okay. If we take example like in our households, we will see ice. If we heat the ice, it will change its
state and the solid will convert into liquid, that is water. And we will heat is water. अगर हम लोग water को heat करते हैं, then water will come into the water vapor, means the liquid will come into the gaseous state. So these are some examples of our natural we will use in our life. Here ice is there. आइस लेके रखा है, आइस है उसे एक बीकर में डाला है, नीचे से हीट कर रहे हैं, तो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आइस वाज द सॉलिड एंड द न्यू स्टेट दैट वाज द वाटर, यानी कि लिक्विड. मतलब आइस सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ. देन इफ वी हीट लिक्विड, द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द गैसेस, दैट इज वेपर्स. यानी कि पहले आइस था, आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, देन वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, दैट इज लिक्विड टू वेपर्स. नाउ वी विल सी दैट वी हैव सम प्रोसेस लाइक फ्यूजन एंड डिफ्यूजन. फ्यूजन एंड डिफ्यूजन. So in fusion, solute convert into liquid, or we can say melting also. ओके, यानी फ्यूजन क्या है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और हम लोग इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं कि वो मेल्ट हो रहा है इस प्रोसेस को. एंड देन डिफ्यूजन विल बी वाटर टू वेपर्स. डिफ्यूजन में क्या है कि जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो दिस विल बी two process which we are used. Now see, if we like iron है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें स्टेट चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हीट को इंक्रीज करेंगे या तो हीट को डिक्रीज करेंगे. सो बाय इंक्रीजिंग हीट और बाय डिक्रीजिंग हीट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर और एनी ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव one process that is known as evaporation. Now, what is evaporation? Evaporation क्या है? जब सन की हीट के कारण वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, that process is evaporation. क्या है? सनलाइट की हीट से जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज एवापोरेशन. लेट्स सी, ड्यू टू हीट ऑफ सन द वाटर हीट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू water vapor. That process is known as evaporation. Evaporation क्या है कि evaporation है जिसमें क्या है, हीट के कारण, सन की हीट के कारण जो वाटर है वो गर्म होता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर वेपर में. इस प्रोसेस को हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं. अब कुछ फैक्टर्स एवापोरेशन जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे कुछ फैक्टर्स जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स जिनके कारण क्या होता है, या तो एवापोरेशन ज्यादा होगा या तो एवापोरेशन कम होगा. तो सब पॉइंट्स आर हियर. फर्स्ट वी हैव इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया मीन्स कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा.
increase of surface area means if the surface area will be increase, the rate of evaporation will be increase. जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा evaporation होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा water पर heat आएगी sun की. So surface area will be increased, rate of evaporation will be increased. Evaporation will be increased. Okay, then next we have here increase of temperature. Next point is increase of temperature. Increase of temperature means कि जितनी ज्यादा सनलाइट होगी, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा evaporation का रेट बढ़ेगा. So the high will be the temperature, the evaporation will be the high. Then the next is decrease in humidity. Decrease in humidity. Now what will be the humidity? Humidity क्या है? Humidity एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हवा है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की अमाउंट ज्यादा हो जाती है. एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तब होती है ह्यूमिडिटी. तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो सनलाइट कम होगी, इसीलिए इवेपोरेशन भी कम होगा. एंड लास्ट टॉपिक इज इंक्रीज इन विंड स्पीड. इंक्रीज इन विंड स्पीड. विंड स्पीड क्या है कि हवा जितना ज्यादा होगी उतना ही जो वाटर है उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा वाटर की मूवमेंट होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा. सो दिस विल बी द 4 पॉइंट्स बाय व्हिच इवेपोरेशन विल बी अफेक्टेड. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट पड़ेगी, इसलिए उतना ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर हीट ज्यादा होगा. देन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वाटर हीट होगा, उतना ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा. देन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मतलब जब एयर में वाटर की ड्रॉपलेट ज्यादा हो जाती है और हवा चलना बंद हो जाती है और सनलाइट भी होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि सन की जो लाइट है वो बहुत कम आती है नीचे की तरफ, जिससे कि डिक्रीज हो जाता है इवेपोरेशन. देन इंक्रीज इन विंड स्पीड. जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ेगी, हवा की जो मूवमेंट है उसके कारण वाटर जो है उसकी भी मूवमेंट होगी, और वाटर की मूवमेंट होगी जिसके कारण क्या होगा कि डिक्रीज होगा इवेपोरेशन. ओके, सो फॉर टुडे इट्स ऑल. वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट टाइम. Done.